خداوند کے نام کی عزت ہو، خداوند کے نام کی ستائش ہو اور خداوند کے نام کی تعریف ہو۔ آج کا جو ٹاپک مجھے دیا گیا ہے وہ دل کے دروازے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم خداوند کے کلام کو دیکھیں، میری آپ سب سے التماس ہے کہ جتنے بھی لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کیونکہ یوٹیوب پر جو ہم نے چینل بنایا ہے وہ پاسٹر کاشف گل جان قمر منسٹری کے نام سے ہے۔ آپ کو میری اور میرے ساری ٹیم کی طرف سے مسیح یسوع میں سلام پہنچے۔ آج ہم کچھ دیر کے لیے حزقیاہ نبی کی زندگی پر غور کریں گے کہ اس نے کس طرح سے اپنے دل کے دروازے اور ہیکل کے دروازوں کو کھولا تو خداوند نے اسے برکتوں سے مالا مال کر دیا۔ آج ہم حزقیاہ کی زندگی پر کچھ دیر کے لیے دیکھیں گے کہ خداوند نے کیسے حزقیاہ کو برومند کیا۔ اس سے پیشتر کہ ہم کلام کی طرف چلیں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل جب دو حصوں میں تقسیم ہو گئی تو 10 قبائل ایک طرف چلے گئے اور 2 قبائل ایک طرف ہو گئے، اور جب ان 2 قبائل نے مل کر حکومت کو بنایا تو حزقیاہ جو ہے وہ یہودا کے قبیلے سے 13واں بادشاہ ہے، اور اس سے پہلے اس کا باپ آخز، پھر منسی، اور یوں حزقیاہ جو ہے وہ یہودا کے قبیلے سے آنے والا 13واں بادشاہ ہے۔ حزقیاہ کا جو مطلب ہے، جو عبرانی زبان ہے، عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا نے مضبوط کیا، خدا نے طاقت دی، خداوند نے اس کو بڑھایا، جو عبرانی زبان میں جو اس کا لفظی مطلب بنتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حزقیاہ 25 برس کا تھا جب وہ یروشلم پر حکومت کرنا شروع کی، اور 29 برس اس نے یروشلم پر اور یہودا پر اس نے سلطنت کی۔ 25 برس کا تھا جب اس کے ہاتھ میں حکومت کو مستحق کر دیا گیا، جب اس کو اقتدار دے دیا گیا، اور اس نے 29 سال ٹوٹل جو ہے وہ حکومت کی۔ اور اس کا ذکر ہمیں جو ملتا ہے سلاطین 18ویں باب میں، دوسرا تواریخ 29 باب میں، اور یوسیہ 37 باب میں ہمیں اس کی تفصیل جو ہے وہ ملتی ہے۔ جب حزقیاہ 39 برس کا ہوا تو خدا کا پیغام اپنے بندہ یوسیہ پر خدا ان کا کلام نازل ہوا، کیونکہ خدا جو کرنے والا تھا، آپ سب جانتے ہیں کہ ہمیں اپنی موت کے دن کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کس دن آ جاتی ہے، کیونکہ انسان اس بات کو جاننے سے قاصر ہے، لیکن خدا نے اپنے بندہ حزقیاہ سے محبت کا اظہار کیا، اور اس نے اپنے بندہ یوسیہ کو بھیجا کہ جا اور یہ الہی پیغام میرے بندہ حزقیاہ کو دے۔ ہم خدا کے کلام میں سے یوسیہ رسول کا صحیفہ اور اس کا 38واں باب اور اس کی پہلی 4 آیات کو دیکھیں گے۔ خداوند کے کلام میں کچھ یوں مرقوم ہے: انہی دنوں میں حزقیاہ ایسا بیمار پڑا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، اور یوسیہ بن آموس کے بیٹے نے اس کے پاس آ کر اس سے کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو اپنے گھر کا انتظام کر لے، کیونکہ تو مر جائے گا اور بچنے کا
नहीं। तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया और खुदावंद से दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूं और जो तेरी नजर में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। जब खुदावंद का ये कलाम यूसाया पर नाज़िल हुआ कि जा और हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है कि मैंने तेरी दुआ सुनी, मैंने तेरे आंसुओं को देखा, सो देख मैं तेरी उम्र 15 बरस और बढ़ा दूंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अभी जब हम इस पैसेज को देख रहे थे, इस हवाले को जब हम देख रहे थे, खुदा ने अपने बंदा हिजकिय्याह से, जिससे वो प्यार करता है, उसने उससे कोई चीज को छुपाया नहीं है। उसने यूसाया से कहा कि जा और हिजकिय्याह से कह कि अपने घर का इंतजाम कर ले, क्योंकि वो मर जाएगा और बचेगा नहीं। लेकिन हम कलाम में देखते हैं कि जब उसने ये पैगाम को सुना तो उसने दीवार की तरफ मुंह किया और जार जार रोया। उसने खुदा से कहा, खुदावंद याद कर कि मैंने वही काम किया है जो तेरी नजर में अच्छा है। हम देखते हैं कि ये जो हिजकिय्याह है, जब ये हुकूमत में नहीं था, जब ये इसको ये सल्तनत नहीं दी गई थी, तो उसका जो बाप आखस था, उसने क्या किया कि उसने पूरे यहूदा में बड़े बड़े मंदिरों को बनवा दिया। बुत परस्ती शुरू हो गई, बाल बलीम की पूजा करना शुरू कर दी और बहुत सारी उसने देवी देवताओं के मुजस्समों को नस्ब कर दिया और उसने खुदा की हैकल के दरवाजों को बंद कर दिया और उसने उसकी तरफ पीठ फेर दी। उसने खुदा के हुजूर कोई कुर्बानी, कोई सौख्ती कुर्बानी ना दी, बल्कि उसने पूरी जमात को, उसने उनको भी खुदा से परागंदा कर दिया और वो लोग बुत परस्ती में गिर गए, वो गुनाह में गिर गए, क्योंकि आखस बादशाह के दौर में ये सब कुछ हुआ। लेकिन जब हिजकिय्याह अपनी हुकूमत में आया तो उसने सबसे पहले जो काम किया, उसने आते ही सबसे पहले उसने खुदा के घर के दरवाजों को खोल दिया। उसने हैकल को जो बंद पड़ी हुई थी, जो जिसके दरवाजे टूट कर शिकार हो चुके थे, उसको उसने आते ही मरम्मत की और उसने खुदा के घर के दरवाजों को खोल दिया। याद रखें कि हिजकिय्याह ने यहूदा के पूरे खानदान से, उस पूरे कबाइल से बुतों की पूजा करवाई, कुर्बानियां उसने देवी देवताओं को चढ़ाई। लेकिन हिजकिय्याह एक ऐसा नबी है, एक ऐसा बादशाह है जो खुदा के आइन से बरगस्ता ना हुआ। इसलिए जब उसको यह पता चला, उसने दीवार की तरफ मुंह किया और जार जार रोया कि खुदावंद याद कर कि मैंने तेरी नजर में वो ही काम किया है जो खुदावंद भला है। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से दूसरा तवारीख और उसका 29वां बाब और उसकी 3री आयत को देखिए। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, खुदावंद का कलाम कुछ यूं बयान करता है। उसने अपनी सल्तनत के पहले बरस के पहले महीने में खुदावंद के दरवाजों को खोला और उसकी मरम्मत की और वो काहिनों और लावियों को ले आया और उनको मशरक की तरफ मैदान में इकट्ठा किया। याद रखें कि
आखज ने सब वो काम किए जो खुदा के खिलाफ थे। उसने बड़े बड़े मंदिरों को बनाया, उसने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर मंदिरों को कायम किया और कौम इस्राएल से उसने बुत परस्ती करवाई और वो बुतों की पूजा में इस कदर मगन हो गए कि वो खुदा यहोवा को भूल गए। वो सौख्ती कुर्बानियां उन देवी देवताओं के नाम से चढ़ाते थे जिसके नामों से भी खुदा को नफरत थी। लेकिन जब हम हिजकिय्याह को देखते हैं, जैसे ही उसने अपनी हुकूमत को अपने हाथों में मुस्तहक किया तो उसने सबसे पहले खुदा के घर के दरवाजों को खोल दिया, क्योंकि वो खुदा से प्यार करता था, खुदा से मोहब्बत रखता था। और उसकी मोहब्बत का इजहार ये है कि जब वो जार जार रोया, उसका ईमान देखें, उसने कहा खुदा तू सब कुछ कर सकता है, खुदावंद तू मुझे इस बीमारी के बिस्तर से उठा सकता है, क्योंकि खुदावंद याद कर कि मैं तेरे साथ साथ चला हूं। हम तवारीख के इसी बाब के 29वें बाब की जो आयत है 6 और 7 उसको भी देखेंगे। खुदा के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, क्योंकि हमारे बाप दादा ने गुनाह किया और जो खुदावंद हमारे खुदा की नज़र में बुरा है वही किया और खुदावंद को छोड़ दिया और खुदावंद के मस्कन से मुंह फेर लिया और अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी और सारे के दरवाज़ों को भी बंद कर दिया और चिराग बुझ गए और इस्राएल के खुदा के मकदस में ना तो बखूर जलाया और ना सौख्तनी कुर्बानी चढ़ाई। ये इकरार करता है हिजकिय्याह कि हमारे आबाओ अजदाद ने, मेरे बाप दादा ने खुदा के साथ इस तरह से उसने रवैया इख्तियार किया कि वो जिंदा खुदा को भूलकर देवी और देवताओं की पूजा करना शुरू कर दी। वो इकरार करता है और वो सारे काहिनों को जो उस वक्त तितर बितर हो गए थे, उसने उन सारे काहिनों को इकट्ठा किया और उसने कहा कि हैकल के दरवाजों को खोल दो और इसके अंदर जितनी भी नजासत है उसको निकाल दो, इसके दीवारों की, इसके दरवाजों की, इसकी मरम्मत करो। और उसने इस्राएल को कहा कि तुम सब जिंदा खुदा से बरगस्ता हो गए हो, आप सब यहां आओ, यहां पे आके खुदावंद के हजूर सौख्तनी कुर्बानियां चढ़ाओ तो खुदावंद तुम्हें बहाल करेगा। हम इसके साथ ही 29वें बाब की 8वीं आयत को भी देखेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है, इस सबब से खुदावंद का कहर यहूदा और यरूशलेम पर नाज़िल हुआ और उसने उनको ऐसे हवाला किया कि मारे मारे फिरे और हैरत और सुस्त कार का बायस हो, जैसा तुम अपनी आंखों से देखते हो। खुदा ने उनको छोड़ दिया, खुदा ने अरामियों को उठा खड़ा किया, खुदा ने उनके भाई इस्राएलियों को उठा खड़ा किया, खुदा ने जो फलस्तीनी हैं उनको उठा खड़ा किया, खुदा ने उदूमियों को उठा खड़ा किया कि वो इनको बरगस्ता करें और इनको गुलाम बनाए। लेकिन हिजकिय्याह वो खुदा पर ईमान रखता था, उसने अपने दिल के दरवाजों को खोल दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने दिल के दरवाजों को खोला, उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए खुदा के घर के दरवाजे खुले रहेंगे, और उसने सब दरवाजों को खुलवा दिया और खुदा के आगे सजदा रेज हो गया। खुदा ने हिजकिय्याह से कहा, देख तूने अपने दिल के दरवाजों को खोला है, तूने हैकल के दरवाजों को खोला है, मैं भी तुझ पर आसमान के दरवाजों को खोलता हूं, मैं तुझे बरकत दूंगा। और जब हम इस हवाले को आगे चल के देखते हैं तो खुदा ने उसे बहुत सारा ब्रूमन किया और उसने बहुत सारे लोगों को खुदावंद के पास लाने का सबब ठहरा और उसने जंग भी की और वो जंग में फतह याब हुआ। जब हम दूसरा करंथियों उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत को देखते हैं,
खुदा के जिंदा कलाम में कुछ यूं मरकूम है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा जिस्म रूहुल कुद्दस का मकदस है। आपसे बात हो रही है कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है। हिजकिय्याह ने खुदा के आइन और अहकामात के मुताबिक उसने खुदा से मोहब्बत की। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो जार जार रोया, और जब वो जार जार रोया तो खुदा का कलाम यूसाया पर नाज़िल हुआ। खुदा ने कहा जा उसको कह कि तेरी दुआ सुन ली गई है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन जो दुआओं का सुनने वाला खुदा है, खुदावन जो मुर्दा बेजान हड्डियों में भी जान डाल सकता है, उसने यूसाया से कहा, अभी वो शहर के दरमियान में भी ना पहुंचा था, खुदा उनका कलाम उस पर नाज़िल हुआ, जा मेरे बंदे से कह तेरी दुआ को मैंने सुन लिया है और मैंने तेरी उम्र को 15 बरस बढ़ा दिया है। ये बातें जो हिजकिय्याह ने की, मैंने अभी आपके सामने नए अहदनामे में से दूसरा करंथियों और उसका 6वां बाब और उसकी 19वीं आयत में, तुम नहीं जानते कि तुम रूहुल कुद्दस का मकदस हो। अब खुदावन जो है हमसे प्यार करता है। अब जरूरत इस बात की है कि उसने हमें अपनी हैकल कहा है। हमें इस हैकल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है। हमें अपने दिल की हैकल के दरवाजों को खोलने की जरूरत है, क्योंकि उसने कहा तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूहुल कुद्दस का मकदस है। हमें अपने दिल के दरवाजों को खोलना चाहिए, खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम करना चाहिए, तभी वो हमारे दिल में तभी वो हमारे दिल के तख्त पर बैठेगा, तभी हम नजात पाएंगे। मेरे साथ एक और हवाला देखिएगा, गलतियों के नाम पालूस रसूल का खत और उसका 5वां बाब और 19वीं आयत से लेकर हम 21वीं आयत तक देखेंगे। देखें, जैसे हिजकिय्याह ने हैकल की नजासत को दूर करवाया, उसने खुदा के घर को बहाल किया। खुदावंद हमारी इस हैकल के बारे में क्या कहता है? अगर ये हैकल भी ऐसी है तो याद रखे खुदा का पाक रूह इस हैकल में नहीं आएगा। इसीलिए खुदावंद के कलाम में लिखा है, मेरे साथ देखिए, अगर हम हैकल को ठीक नहीं करेंगे, अब जिस्म के काम तो जाहिर है, यानी हरामकारी, नापाकी, शवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बदगोइयां और बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानिद, इनकी बाबत तमाम तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। याद रखें, अगर हमने इस हैकल को पाक ना किया, अगर हमने इस हैकल के अंदर इसकी निजास्तों को साफ ना किया, अगर हमने इस हैकल के दिल के दरवाजों को ना खोला, तो हम खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। इसलिए हज्जी की किताब में लिखा है, ये बोते तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन काटते थोड़े हैं, ये गर्म कपड़े पहनते तो हैं लेकिन गर्म नहीं होते हैं। याद रखें कि जब तक हम अपने इस बॉडी को साफ नहीं करेंगे, इसकी नजासत को दूर नहीं करेंगे, जब हम अपने आप को पाक नहीं करेंगे, खुदा कभी भी हमारे दिल में और कभी भी वो आकर नहीं बैठेगा, क्योंकि खुदा पाक है और वो चाहता है कि हम भी उसकी तरह पाक हो जाएं। खुदावंद आपको इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।